Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily, complete it daily and don't leave it pending. Today, we will start our 7th chapter, Packing from Behind book, written by Jerome K. Jerome. Students, this is an extract from थ्री मैन इन आ बोट। ये एक पार्ट है जो थ्री मैन इन बोट से लिया गया है। स्टूडेंट्स, देयर आर थ्री कैरेक्टर्स ऑथर हिमसेल्फ, जॉर्ज एंड हैरिस, एंड द लास्ट वन इज डॉग मोंटमोरेंसी। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। स्टूडेंट्स, कभी आप ट्रिप पर गए हैं? ट्रिप पर जाने से पहले क्या कभी आपने पैकिंग की है? और यदि पैकिंग की है तो पैकिंग करते समय कुछ आप भूल गए हो, उस पर आपको हंसी आई है या गुस्सा आया है, तो चलिए लेट अस स्टार्ट। आई सेड आई वुड पैक। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. George put on a pipe and spread himself over the easy chair, and Harris cocked his legs on the table and lit a cigar. Then I, who is author? Author is saying, writer is saying that I said I would pack. उसने कहा कि he would pack, वो पैक करेगा। I rather pride myself on my packing, क्योंकि ऑथर को अपनी पैकिंग पर बहुत ज़्यादा प्राइड मीन्स गर्व है। पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स। पैकिंग उन बहुत सारी चीज़ों में से एक है that I feel I know more about than any other person living, जो वो किसी भी लिविंग पर्सन से ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। I impressed the fact upon George and Harris. मैंने जॉर्ज और हैरिस पर दबाव डालते हुए कहा and told them that they had better leave the whole matter entirely to me, कि वो पैकिंग का सारा मैटर मेरे ऊपर, entirely means completely, सारा मैटर मेरे ऊपर छोड़ दें। They fell into the suggestion with a readiness. वो पूरी तरह से एकदम रेडीनेस भी जल्दी ही मान भी गए, मेरे सजेशन को, सुझाव को मान गए। That had something uncanny about it. Uncanny means strange, जो मुझे बड़ा strange लगा, अजीब लगा। George put on a pipe and spread himself over the easy chair. George ने एक पाइप सुलगाया और अपने आप को easy chair पर अच्छे से बिछा लिया। And Harris cocked his leg. Cock means put. Harris ने अपने पैरों को टेबल पर रखा and lit a cigar. जैसे लंबे पैर नहीं फैला के बैठते वैसे, और एक सिगार, डू यू नो सिगार, वो बीड़ी और सिगरेट जैसा नहीं, एक अलग सा होता है वो, जिसको यहाँ से मुड़ा हुआ होता है, वो सुलगा करके बैठ गया। लेट अस कंटिन्यू सेकंड पैसेज। दिस वाज हार्डली व्हाट आई इंटेंडेड। व्हाट आई हैड मीन्ड ऑफ कोर्स वाज दैट आई शुड बोझ द जोक एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड potter about under my directions, I pushing them aside every now and then with, "Oh you, here, let me do it. There you are." Simple enough. Really teaching them, as you might say, their taking it in the way they did irritated me. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. Writer is saying here, this was hardly what I intended. मैंने, इसका मतलब ये था कि जो मैंने सोचा था वो हुआ। What I had meant, कि मेरा ये मतलब था, of course was that I should both the job, कि शायद वो दोनों काम करें, both the job, और मैं उनके काम का निरीक्षण करूं। both means to observe, उनके काम को देखूं कि वे गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। And that Harris and George should potter about under my directions, और Harris और George, potter about means doing something important, कुछ भी important कर रहे हो वो भी मेरी under direction, मेरे अंडर में। I pushing them aside every now and then,
और बीच बीच में नाउ एंड देन बीच बीच में मैं उनको ये बोलता रहूं, अरे हटो, एक साइड हटो, ओ यू, अरे देखो ना, हियर लेट मी डू इट, देखो ये मुझे करने दो, बड़ा सिंपल है, देयर यू आर, सिंपल इनफ, देखो कितना आसान है करना, बीच बीच में मैं उनको टोकता रहूं। रियली टीचिंग देम, और ऐसा जैसे कि एज यू माइट से, कि आप कह सकते हैं कि उनको सिखाने जैसा, कि अरे तो ऐसे नहीं करना, देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, देखो ये ऐसे करते हैं। दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी, परंतु उन्होंने इस प्रकार को लिया, इस काम को ऐसे लिया, मुझे इरिटेट किया। किस काम को? कि वो दोनों तो बैठ गए चेयर पे और फैला के और सिगार सुलगा लिया, मुझे बहुत इरिटेट हुआ, बहुत इरिटेट मीन्स गुस्सा आया इस बात को। There is nothing does irritated me more than seeing other people sitting about doing nothing when I was working. मुझे और किसी बात पर इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, कब आता है? जब ये बात मुझे ज़्यादा इरिटेट करती है, जब और कोई बैठा रहे और मैं काम करता रहूँ। Let us continue. Para third. I lived with a man once who used to make me mad that way. He would loll on the sofa and watch me doing things by hour together. He said it did me real good to look on at me messing about. Writer is saying about himself that he lived with a man once. कि वो एक बार एक व्यक्ति के साथ रहते थे. Who used to make me mad that way. जो उस तरह से उनको पागल कर देता था. He would loll on the sofa and watch me doing things by hour together. वो तो खुद सोफा पर लेट जाता था. लोल मीन्स कि सोफा पर बैठ गया और टेबल पर पैर रख लिए और डूइंग थिंग्स बाय आवर टुगेदर, और कई घंटों तक मुझे काम करते हुए देखता रहता था. ही सेड इट डिड मी रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट. वो कहता था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है वास्तव में जब आप मैसिंग में व्यवस्थित करना, जब चीज़ों को व्यवस्थित करते हो तो मुझे ये देखना बहुत अच्छा लगता है. Now I am not like that. I can't sit still and see another man slaving and working. I want to get up and superintend the walk around with my hands in my pockets and tell him what to do. It is my energetic nature. I can't help it. So now, अब I am not like that. मैं उसके जैसा नहीं हूँ. राइटर इज सेइंग कि वो जो है वो उसके जैसे, उस व्यक्ति के जैसे नहीं है. I can't sit still and see another man slaving and working. मैं ऐसे नहीं हूँ कि चेयर पर बैठ जाऊँ और दूसरे लोग काम करते रहें. स्लेविंग, गुलाम बने रहे मेरे, और मैं वो काम करते रहे और मैं देखता रहूँ. I want to get up. मैं उठना चाहता हूँ. एंड सुपरिंटेंड एंड ऑब्जर्वेशन करना चाहता हूँ, निगरानी देखना चाहता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं. द वर्क राउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स. कैसे? अपने पॉकेट्स में हाथ डालकर इधर उधर घूमना, वॉकिंग नहीं करते जैसे सुपरविजन करते हैं. एंड टेल हिम व्हाट टू डू. इट इज माई एनर्जेटिक नेचर. आई कांट हेल्प इट. और उनसे कहूँ कि देखो कैसे करना चाहिए, ये मेरा एनर्जेटिक नेचर है, उत्साह से जोश से भरा नेचर है और मैं इसको बदल नहीं सकता. Let us continue. Para 4. However, I did not say anything, but I started the packing. It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last, and I sat on it and stacked it. परंतु मैंने कुछ नहीं कहा, राइटर ने कुछ नहीं कहा, but started the packing, और पैकिंग करनी शुरू कर दी. It seemed a longer job than I had thought it was going to be. जैसा ये चल रहा था प्रोसेस पैकिंग करने का, तो मैंने सोचा था कि थोड़ी देर ही लगेगी और जल्दी से पैक हो जाएगा. But I got the bag finished at last. परंतु अंत में मैंने बैग पैक कर लिया. And I sat on it and strapped it. और मैं उसके ऊपर बैठ गया. Strapped means उसकी जो फीते होते हैं, तनियाँ होती हैं, वो बांध दी. Aren't you going to put the boots in? said Harris. And I looked round and found I had forgotten them. That's just like Harris. He couldn't have said a word until I'd got the bag shut and strapped. Of course, and George laughed one of those irritating, senseless laughs of his. They do make me so wild. Aren't you going to put the boots in? said Harris. और जब मैंने बैग बंद कर लिया
स्टूडेंट जब कोई काम फिनिश हो जाए और उसमें कोई फिर मिस्टेक निकाले तो गुस्सा आता है। तो जब पहले नहीं बोल सकता था, सामने ही बैठा था, तो जॉर्ज हैरिस ने बोला, अरे क्या तुमने जूते रख लिए? एंड आई लुक्ड अराउंड एंड फाउंड आई हैव फॉरगॉटन देम। और मैंने इधर उधर देखा और देखा कि मैं उनको फॉरगॉटन मींस भूल चुका था। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, जैसे कि हैरिस ने किया था। He couldn't have said a word until I would got the bag shut and strapped. जब तक मैंने बैग बांधा नहीं था, उसको पैक नहीं किया था, तो उसके बीच में बोल नहीं सकता था। And George laughed, one of those irritating, senseless laughs of his. और जॉर्ज उसी समय ऐसी हंसी हंसा कि जो सेंसलेस थी, उसका कोई मतलब नहीं था। They do make me so wild. और उनके इस प्रकार के कार्यों ने मुझे और गुस्से में ला दिया। Let's continue. Paragraph. I opened the bag and packed the boots in, and then, just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. I opened the bag. And now writer is saying कि जैसे ही उन्होंने बैग खोला and packed the toothbrush and packed the boots in, और boots को पैक किया, and then just as I was going to close it, और जैसे ही वो उसको बंद करने जा रहे थे, a horrible idea occurred to me, उनको एक भयानक सा आइडिया आया, माइंड में आया। Had I packed my toothbrush in, और तुरंत उन्होंने सोचा कि क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक कर लिया। I don't know how it is, उन्हें नहीं पता था कैसे हुआ। But I never do know whether I have packed my toothbrush, बट उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने अपना टूथब्रश पैक किया या नहीं किया। My toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling and makes my life misery. I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of bed and hunt for it. And in the morning I have packed it before I have used it and have to unpack again to get it, and it is always the last thing I turned out of the bag, and then I repack and forget it. My toothbrush is a thing that haunts me. उनकी टूथब्रश ऐसी चीज होती थी जो उनको परेशान करती थी। When I am traveling, जब वो यात्रा कर रहे होते थे, and makes my life misery, और उनके जीवन को दुखी बना देती है। I dream that I haven't packed it. उन्हें सपना आया कि शायद उन्होंने टूथब्रश को पैक ही नहीं किया। And wake up in a cold perspiration, और फिर उन्हें वो जाग गए एक ठंडे पसीने में। And get out of bed, और बैग से उतरे, and hunt for it, और उस टूथब्रश को ढूंढने लगे। And in the morning I have packed it before it I have used it, और सुबह को क्या किया, हम सुबह सुबह उठ के ब्रश करते हैं, पर उन्होंने क्या किया, उस ब्रश को पहले ही बैग में रख दिया, ब्रश करने से पहले ही उसको बैग में रख दिया। And have to unpack again, और फिर से बैग को खोला, and get it, और फिर उसको उसमें से लिया। And it is always the last thing I turned out of the bag, और ये उनकी लास्ट थिंग होती है जब वो इसको करते हैं। And then I repack and forget it, फिर उन्होंने उस बैग को पैक कर दिया, and repack and forget it, और फिर वो रिपैक कर दिया बैग को, और फिर वो उसको भूल गए। Now para 6. Of course I had to turn every mortal thing out now, and of course I could not find it. I rummaged the things into much the same state that they must have been before the world was created, and when cause began. Of course I found George and Harris's 18 times over, but I couldn't find my own. I put the thing back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boat. I repacked it once more. The poet writer is saying now, of course, निसंदेह I had to turn every mortal thing out now. अब हर चीज को उन्होंने बाहर निकाला। Mortal means non living thing थी जो बैग के अंदर, उन सब चीजों को बाहर निकाला। And of course I could not find it, और निसंदेह उनको वो बैग और टूथब्रश, what is he finding out? टूथब्रश, उनको टूथब्रश नहीं मिला। I rummaged the things, उन्होंने चीजों को स्कैटर कर दिया into much the same state, उसी स्थिति में that they must have been before the world was created,
जिस स्थिति में वो संसार की रचना होने से पहले थी। एंड व्हेन कोज रिगेन, और उनको अस्त व्यस्त कर दिया। Of course I found George and Harris's 18 times over. निसंदेह मैंने जो जॉर्ज और हैरिस का टूथब्रश ढूंढा था तो वो मुझे 18 टाइम मिल गया। बट आई कुड नॉट फाइंड माई ओन, परंतु मुझे अपना एक बार भी नहीं मिला। आई पुट द थिंग बैक वन बाई वन, मैंने चीजों को एक एक करके रखना शुरू कर दिया। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शोक इट, और हर चीज को ऊपर उठाया, हिलाया, हिला कर देखा कि कहीं इसमें टूथब्रश तो नहीं है। देन आई फाउंड इट इनसाइड ए बूट, और फिर लास्ट में वो मुझे कहाँ मिला? एक बूट के अंदर मिला। आई रिपैक्ड वंस मोर, और फिर से मैंने बैग को पैक कर दिया। Era 7. When I had finished, George asked if the soap was in. I said I didn't care a hand whether the soap was in or whether it wasn't, and I slammed the bag shut and stabbed it, and found that I had packed my specs in it and had to reopen it. It got shut up finally at 10:05 p.m. and then there remained the hampers to do. Harris said that we should be waiting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better do the rest. And I agreed and sat down and they had a go. Now, when I had finished, George asked. जब वो पैकिंग पूरी फिनिश कर चुके तब जॉर्ज ने पूछा if the soap was in, साबुन रख लिया? I said I did not care a hand whether the soap was in or whether it was not. मैंने कहा मुझे चिंता नहीं है साबुन अंदर है या नहीं है, पैक किया या नहीं किया, मुझे चिंता नहीं है इसकी। I slammed the bag shut and stabbed it, और मैंने कस के, जैसे जिप कस के नहीं लगाते, ऐसे कस के जिप लगा दी, बंद कर दिया उसको। स्टेप उसकी जो स्टेप्स थी उनको भी बांध दिया। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माय स्पेक्स इन इट, और फिर देखा कि मेरे स्पेक्स भी बैग के अंदर रह गए। एंड हैड टू रीओपन इट, और फिर उसको खोला। इट गॉट शट अप फाइनली 10:05 PM, और 10:05 पर पूरी तरह से जो पैकिंग खत्म हो गई। एंड देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू, और फिर बास्केट बाहर रह गई जिनमें खाना ले जाना होता है। हैरिस सेड दैट we should be waiting to start in less than 12 hours. हैरिस ने कहा कि हमारे पास 12 से भी कम घंटे हैं स्टार्ट करने के लिए हमारी यात्रा। And thought that he and George had better to do the rest. और कहा कि जॉर्ज और वो मिलकर के, यानी कि हैरिस और जॉर्ज मिलकर के जो बची हुई पैकिंग है, रेस्ट मीन्स रिमेनिंग, बची हुई पैकिंग है वो कर लेंगे। आई एग्रीड, ऑथर तैयार हो गए। एंड सेट डाउन, और बैठ गए। एंड दे हैड टू गो, और उन्होंने पैकिंग करनी शुरू कर दी। Let us continue. They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. I made no comments. I only waited. With the exception of George, Harris is the worst packer in the world, and I looked at the piles of plates and cups and kettles, bottles, jars, pies and stoves, cakes, tomatoes, etc., and felt that the thing would soon become exciting. Now he is saying they began in a light-hearted spirit. अब उन्होंने हल्के फुल्के मन से पैकिंग करना स्टार्ट किया। Evidently intending, उनका इरादा, intend means इरादा करना, वो मुझे ये दिखाना चाहते थे, to show me how to do it, कि पैकिंग कैसे करते हैं। I made no comments, मैंने कोई टिप्पणी, कोई रिमार्क नहीं किया। I only waited, मैंने केवल इंतजार किया। With the exception of George, Harris is the worst packer in the world. जॉर्ज को छोड़कर हैरिस संसार का सबसे बुरा पैकर है। And I looked at the piles of plates, और मैंने देखा कि उन्होंने ढेर लगा दिया प्लेट्स का, कप्स का, केटल्स, बॉटल्स, जार्स, पाइज एंड स्टोव्स, केक्स, टोमेटोज एसेट्रा, सबका एक के ऊपर एक ढेर लगा दिया बैग में। एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग, और मैंने महसूस किया कि अब कुछ ना कुछ एक्साइटिंग होने वाला है। इट डिड। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, दैट वाज द फर्स्ट थिंग दे डिड। They did that just to show you what they could do and to get you interested. Then Harris packed the strawberry jam
on the top of a tomato and squeezed it, and they had to pick out the tomato with a teaspoon. और क्या किया उन्होंने? It did, और ऐसा ही हुआ. क्या हुआ? They started with breaking a cup. अब उन्होंने जब पैकिंग करना शुरू की तो स्टार्टिंग में ही एक कप तोड़ दिया. That was the first thing they did. ये पहली चीज थी जो उन्होंने की. They did that just to show you what they could do. वो उन्होंने ये दिखाने के लिए किया, ये तुम्हें दिखाने के लिए किया कि वो क्या कर सकते थे. And to get you interested, जिससे कि तुम्हारा इंटरेस्ट उनकी पैकिंग में बढ़ जाए. Then Harris packed the strawberry jam on the top of the tomato. अब हैरिस ने क्या किया? जैम को टोमेटो के ऊपर रख दिया. अब जैम का जो जार होता है वो भारी होता है, टोमेटो कैसा होता है? स्क्विजी. तो वो क्या हुआ? एंड स्क्वेज्ड, और उसको कुचल दिया. एंड दे हैव टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून. और फिर जो कुचला हुआ टोमेटो था उसको उन्होंने टीस्पून की मदद से उठाना शुरू कर दिया. And then it was George's turn, and he trod on the butter. I didn't say anything, but I came over and sat on the edge of the table and watched them. It irritated them more than anything I could have said. I felt that it made them nervous and excited, and they stabbed on things and put things behind them, and then couldn't find them when they wanted them, and they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pie food. And the writer says, and then it was George's turn. अब हैरिस ने पैकिंग कर ली, अब जॉर्ज का टर्न आया. And he trod on the butter, और फिर उसने बटर को कुचल दिया, उसके ऊपर पैर रख दिया. It did not say anything. I did not say anything. मैंने कुछ नहीं कहा. But I came over and sat on the edge of the table. मैं आया और टेबल के किनारे पर बैठ गया. Edge means किनारा. And watched them, और उनको देखने लगा. It irritated them. इससे उनको बहुत ही चिड़चिड़ापन लगा, बहुत ही अजीब गुस्सा लगा उनको. More than anything I could have said. इससे भी ज्यादा कि मैं कुछ कहता, वो पहले ही चिड़चिड़ापन हो गया उनको. I felt that. ऐसा मैंने महसूस किया. It made them nervous and excited. इससे वो नर्वस हो गए and excited हो गए. And they stabbed on things, और फिर उन्होंने step में पैर रखना शुरू कर दिया, चीजों पर पैर रख दिया. And put things behind them, और चीजों को अपने पीछे रख दिया. And then could find them when they couldn't find them when they wanted them, और जब उनको वो चीजें पैक करनी होती थी तब ढूंढते थे तो वो मिलती नहीं थी क्योंकि वो तो पीछे रखी थी. And they packed the pies at the bottom, फिर उन्होंने मुरब्बों को नीचे रख दिया, मुरब्बे को. And put heavy things on the top, और ऊपर heavy things, भारी चीजों को रख दिया. And smashed the pies in, और मुरब्बे को नीचे कुचल दिया. Then they upset salt over everything. And as for the butter, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. After George had got it off his slipper, they tried to put it in the kettle. It wouldn't go in, and what was in would not come out. They did scrape it out at last, and put it down on the chair, and Harry sat on it, and it stuck to him, and they went looking for it all over the room. They upset salt. अब जो पैकिंग कर रहे हैं ना, तो उन्होंने क्या किया? पैकिंग करते करते साल्ट, नमक को सब चीजों के ऊपर गिरा दिया. And as far as the butter, और जहाँ तक की बटर की बात थी, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. मैंने अपने जीवन में, his writer is saying कि उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा 1 पेंस के लिए, जैसे 1 रुपया कहते हैं तो that is currency, 1 पेंस के लिए ऐसा करते हुए जैसे कि वो दोनों कर रहे थे. And after George had got it off his slipper, और बाद में वो मक्खन जॉर्ज को अपने स्लीपर पर पड़े हुए मिला. They tried to put it in the kettle. उन्होंने उसको केटली में रखने की कोशिश की. It wouldn't go in. वो उसके अंदर नहीं गया. And what was in, जो उसके अंदर चला गया केटल के, would not come out. फिर वो उन्होंने कोशिश की उसको निकालने की, पर वो बाहर नहीं निकला.
दे डिड स्क्रैप इट, उन्होंने उसको खुरचने लगा, खुरच करके बाहर निकाला, आउट एट लास्ट, एंड पुट इट डाउन ऑन द चेयर, और फिर पीछे चेयर पड़ी थी उसके ऊपर रख दिया, एंड हैरिस सैट ऑन इट, और उस मक्खन के ऊपर हैरिस बैठ गए, एंड इट स्टक टू हिम, और वो उसको पीछे चिपक गया, एंड देन दे लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और फिर उन्होंने लुक फॉर मीन्स ढूंढना, तलाश करना, सर्च आउट, फिर उन्होंने उसको सारे रूम में ढूंढा। I'll take my oath, I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. I saw you do it myself, not a minute ago, said Harris. तब I'll take my oath, अब I put it down on that chair, said Harris. जॉर्ज ने कहा, अरे अभी ओथ मीन्स कसम खाता हूँ, कसम से मैंने अभी इस कुर्सी पर रखा था, ऑन दैट चेयर, देखो उस चेयर पर मैंने अभी रखा था, स्टेरिंग एट द एम्प्टी सीट, और फिर उस जो खाली सीट पड़ी हुई थी उसकी तरफ देखता है तो सीट पर कुछ था ही नहीं। आई सो यू डू इट माई सेल्फ नॉट ए मिनट अगो, सैड हैरिस, हैरिस ने कहा, हाँ 1 मिनट मैंने खुद देखा था तुम्हें ऐसा करते हुए। Then they started round the room again looking for it, and they met again in the center and stared at one another. Most extraordinary thing I ever heard of, said George. So mysterious, said Harris. Then George got round at the back of Harris and saw it. Why, here it is all the time, he exclaimed indignantly. Where? Cried Harris. Spinning round, stand still, can't you? Roared George, flying after him, and they got it off and packed it in the teapot. Not a minute ago, said Harris. Then they started round the room. फिर वो रूम में घूमना शुरू हो गए, and looking for it, और उस मक्खन को ढूंढने लगे, and they met again in the center and stared at one another. फिर जब वो घूमते घूमते आए तो दोनों सेंटर में आकर के मिले और एक दूसरे को घूरने लगे। Most extraordinary thing I ever heard of, said George. जॉर्ज ने कहा, बड़ी ही अजीब चीज थी, and मैंने कभी नहीं सुना ऐसी चीज के बारे में, said Harris. Then George, so mysterious, said Harris. हैरिस ने कहा, हाँ बड़ी मिस्टीरियस, रहस्यात्मक चीज हो गई, अरे अभी तो यहीं रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। Then George got round at the back of Harris and saw it. फिर जॉर्ज ने क्या कहा, हैरिस के पीठ के पीछे देखा और देखा कि वो तो वहां थी। Why hear it all the time? अरे ये यहीं क्यों रहती है हमेशा? He exclaimed indignantly. गुस्से में बोला, Where, कहाँ? cried Harris. हैरिस ने चिल्ला करके बोला, कहाँ? Spinning round, stand still, can't you? roared George, flying after him. अब जॉर्ज उसके पीछे उसको पकड़ते हुए बोला, अरे रुक नहीं सकते हो, स्टैंड स्टिल, खड़े हो जाओ 1 मिनट के लिए, कांट यू, स्टक, खड़ा, सीधे खड़े नहीं हो सकते हो। एंड दे गॉट इट ऑफ, और फिर उनको वो मिल गया, एंड पैक्ड इट इन द टीपॉट, और उन्होंने वो टीपॉट में पैक कर दिया। Montmorency was in at all, of course, Montmorency's ambition in life to get in the way and be scorned at. If he can squirm in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. Montmorency, who is, I have told in the beginning of the story, this is a dog. तो Montmorency dog था, वो भी इन सब के बीच में था। Of course, Montmorency's ambition in life to get in the way and be scorned at. Montmorency की अभिलाषा, इच्छा, ambition means इच्छा थी कि वो भी इस प्रकार से उन चीजों के बीच में घुसे and be scorned at, और लोग उस पर नफरत करें। If he can squirm in anywhere where he particularly is not wanted, यदि वो उन चीजों में घुस जाता जहाँ पे उसकी जरूरत नहीं होती थी, and be a perfect nuisance, और लोगों को परेशान कर देता था, and make people mad, उनको पागल बना देता था, and have things thrown at his head, जब तक कि वो उसके ऊपर चीजें ना फेंक दे, then he feels his day has not been wasted. तब वो सोचता था, जब इतने लोग ज्यादा परेशान हो जाते थे उससे और पागल बना देता था वो उनको, तब वो सोचता था कि अब मेरा दिन सफल हो गया, बेकार नहीं हुआ मेरा दिन।
to get somebody to stumble over him and curse him steadily for on an hour is his highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. To get any somebody to stumble over him, जब कोई उसके पीछे भागता, उसके ऊपर लुढ़कता हुआ भागता, and curse him और उसको श्राप देता, गालियां देता, steadily for an hour घंटों तक, तो is his highest aim and object, यही उसका highest aim, यही उसका उद्देश्य होता था कि लोग मुझे गाली दें, कोसें, मेरे पीछे भागें. When he has succeeded in accomplishing this, और जब वो इसको पूरा करने में सफल हो जाता था, his conceit becomes quite unbearable, तो उसका जो conceit means अभिमान, unbearable, असहनीय हो जाता था. Yes, he came and sat down on things just when they were wanted as to be pegged, and he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hands for anything, it was his cold damp nose what they wanted. He put his lap into the jam, and he would read the teaspoons, and he pretended that lemons were rats, and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan. और वो मोंटमोरेंसी आता और उन चीजों के ऊपर बैठ जाता था. जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, उसी समय जब उनको पैक होना था. एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ, और वो इस विश्वास के नीचे था कि व्हेनेवर हैरिस एंड जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड्स, और उसको ये विश्वास के लिए वो मेहनत करता था कि जब भी कभी हैरिस और जॉर्ज अपना हाथ बढ़ाएंगे फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज को उठाने के लिए, इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज, तो वो उसकी जो ठंडी और नाक थी वो उनके हाथ में आ जाएगी. व्हाट दे वांटेड, जो वो चाहते थे. ही पुट हिज लैप इनटू द जैम एंड ही वेड द टीस्पून्स, उसने क्या किया, जैम के ऊपर पैर रख दिया और चम्मचों को इधर उधर कर दिया. एंड ही प्रिटेंडेड दैट लेमन्स वर रैट्स, और उसने ये बहाना बनाया कि जो लेमन्स हैं वो रैट्स थे. एंड गोट इनटू द हैम्पर, और बास्केट के अंदर गया, एंड किल्ड 3 of them, और तीनों को 3 को उनमें से मार दिया. बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, उससे पहले कि हैरिस उसके पीछे फ्राई पैन लेकर के दौड़ा. हैरिस said, I encouraged him. I did not encourage him. A dog like that does not want any encouragement. It's the natural original sin that is born in him that makes him do things like that. The packing was done at 12:50, and Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. George said that if anything was broken, it was broken, which reflection seemed to comfort him. He also said he was ready for the bed. We were all ready for bed. Harris was to sleep with us that night, and we went upstairs. हैरिस सैड आई एनकरेज हिम. स्टूडेंट्स, अब हैरिस कहते हैं कि आई एनकरेज्ड हिम, आई डिड नॉट एनकरेज हिम. उस मोंटमोरेंसी इज ए डॉग, कि डॉग को मैंने प्रोत्साहित किया है, मैंने उसे प्रोत्साहित नहीं किया है. अ डॉग लाइक दैट डज नॉट वांट एनी एनकरेजमेंट. जैसा मोंटमोरेंसी डॉग है वैसे डॉग को किसी प्रोत्साहन की जरूरत नहीं होती है. इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज बोर्न इन हिम. ये तो उसकी जन्मजात ओरिजिनल नेचुरल जन्म से ही उसको ये बुराई मिली हुई होती है. एंड दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट. सिन मीन्स पाप होता है, जो उसको दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, जो फिर उसको ये सब चीजें करने पर मजबूर करती है. द पैकिंग वॉज डन एट 12:50. पैकिंग 12:50 पर रेडी हो गई. एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर, और हैरिस बड़ी सी बास्केट के ऊपर बैठ गया. एंड सैड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और उसने कहा कि अब मैं आशा करता हूँ कि कोई चीज शायद टूटी ना हो. जॉर्ज सैड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन. जॉर्ज ने कहा कि यदि कोई चीज टूटनी होगी तो वो टूटेगी. विच रिफ्लेक्शन सीम्ड टू कंफर्ट हिम, ऐसा उसका जो विचार था उससे थोड़ा सा राहत मिली. He also said he was ready for the bed. उसने ये भी कहा कि वो बिस्तर पर जाने के लिए तैयार है. We were all ready for bed. हम सब बिस्तर पर जाने के लिए तैयार थे.
Harris was to sleep with us that night and we went upstairs. Harris आज की रात हमारे साथ सोएगा और हम सब सीढ़ियों से ऊपर चले गए. Para 15. We tossed 4 beds and Harris had to sleep with me. Do you prefer the inside or outside? J. I said I generally preferred to sleep inside the bed. Harris said it was odd. George said, what time shall I wake you fellows? Harris said 7. I said no 6 because I wanted to write some letters. Harris and I had a bit of a row over it, but at last split the difference and said 6:30. Wake us at 6:30, George, we said. We tossed 4 beds. फिर लास्ट में हमने बेड पर, अब सोने का टाइम हो गया, शाम हो गई, तो सोने के लिए हमने टॉस किया. एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, और हैरिस को ऑथर के साथ सोना पड़ा. डू यू प्रिफर द इनसाइड और आउटसाइड? जे. जे मीन्स हियर जेरोम, राइटर नेम इज जेरोम. के जेरोम? तो जे कि जेरोम आप कहाँ सोओगे, आउटसाइड और इनसाइड. आउटसाइड इनसाइड मीन्स बैग, वो जो दीवार की तरफ होती है वो इनसाइड होती है. आई सेड आई जनरली प्रिफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड. तो राइटर ने कहा कि वो इनसाइड सोते हैं बेड के. हैरिस सेड इट वाज ओल्ड. हैरिस ने कहा ये तो बड़ा अजीब है. जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज. तो जॉर्ज ने पूछा कि अच्छा बताओ सुबह कितने बजे उठा दूं. हैरिस सेड 7. हैरिस ने कहा 7 o'clock पे उठा देना. आई सेड नो 6. आई, ऑथर ने कहा नहीं 6 o'clock पे, बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि ऑथर को कुछ लेटर्स लिखने थे. हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ अ रो ओवर इट. हैरिस और ऑथर का इस बात पर थोड़ा सा झगड़ा हो गया. बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30. और दोनों बाद में इस बात पर तय हो गए, राजी हो गए कि ठीक है 6:30 पे उठा देना, 6:30 बजे. Wake us at 6:30, George, we said. George, हमें 6:30 पे जगा देना, हमने कहा. Let's continue. Last para. George made no answer, and we found on going over that he had been asleep for some time. So we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. अब students, this is a very humorous story. उन्होंने क्या किया? जॉर्ज मेड नो आंसर. जब उसने सुना कि वो हैरिस भी सोएगा तो जॉर्ज ने इस बात पर कोई आंसर नहीं दिया. एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर, और जब हमने ऊपर जाकर के देखा दैट ही हैड बीन asleep फॉर सम टाइम, तो वो कुछ समय से वहीं पर सो रहा था. सो वी प्लेस्ड द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट. हमने क्या किया? बाथ टब रख दिया वहां पे, बेड के पास बाथ टब रख दिया, जिससे कि ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, कि जब वो सुबह को उठे तो ही कुड टम्बल इनटू इट, वो उसमें गिर जाए. एंड वेंट टू बेड आवरसेल्व्स, और हम भी सोने के लिए चले गए. स्टूडेंट्स, यू एंजॉयड द स्टोरी वेरी मच, एंड नाउ you can do the question answers. Stay home, stay safe.